which is dictionary. In previous lecture, we have discussed about some of the memory management techniques and memory allocations. There are two types of memory allocation: dynamic memory allocation and static memory allocation. And we have seen Python object. Any construct that contain any type of value is an object. So we can say it is a object-oriented programming language. There are some of the characteristics of Python object. These are identity, type, and value. Any object consists of identity, type, and its value. Is it visible to you? Yes, sir. Okay. So, object having some attributes and there are built-in data types in Python like structure, integer, float, complex, list, tuple, range, dictionary, set, frozen, boolean, byte array, memory view. These are the data types. We are looking at dictionary data type. As we have already seen how to find the data types, there is a function, type function is there. By using type function with argument, it will be give us a data types. Python having numeric, dictionary, boolean, set and sequence data types. And numeric, there are three data types: integer, complex, number and float. Number, string and list, these are similar type of data, but there are a little difference, which is list is separated by comma and written into the rectangle bracket. This bracket is used to write the list. This is the concatenation operator. To join two lists, we can use concatenation operator. And this is the repetition operator. To make do the content repeat, we use repeat operator. There we have already seen this program for list. And next data type we have studied, that is a tuple, which is similar to the list. Just we use their parenthesis and the atom in the tuple is separated by the comma. Tuple is read-only data structure as we can't modify the size and value of its atom. We have seen some examples of tuple as well as created tuple. In that, 3 element, hi, Python and 2, displayed that element one by one, concatenate tuple and repeated using repeated the tuple using repeat operator. Star is used there for repeat operator. Now next is the Python dictionary. Dictionary is also as list, tuple and integer, but there
we can use a function dict method to add the element, delete element from it. Dictionary can be created by using multiple key values. In dictionary, there is key and key values. It consists of keys and key values. In previous lecture, we know how to create empty dictionary just by writing any variable name as dict and opening and curly bracket. Empty dictionary will be created. To print that, use print function with argument dict. You see, this is print is the function and this dict is the argument of this function. We have also discussed how the data can be accessed from the dictionary. To access the data, we need the data format specifier and the variable name with % and the data we want to access, their key. Their key is name and its value content John. So this will be appear. Again in second, you can see we have selected employee variable and their key is the age. It will be appear once we run this code with age 29. Yes, are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, salary, this is the key and it has value 25,000, and the again next variable is employee and it has key company and its value is Google, which is displayed in output. You can see output. What are the things we have written with print? Only these things will be printed. You see, you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 print functions we have used. This is the output function. So 5 output is displayed. You can see 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 output functions are there. So 6 of output, 6 statement of output is displayed. You know how to access the data from the dictionary. We have created one dictionary with opening and curly brace. There are some values and keys written in that. Now we have a key and we want to find out its value. Then such type of program you have practically and you have to submit to me. ये प्रोग्राम आपको करना है और सबमिट करना है. नेक्स्ट, एडिंग डिक्शनरी वैल्यूज. अब ये तो एक्सेस हो गया था, फिर इसमें ऐड भी कर सकते हैं क्या? यस, वी कैन ऐड द वैल्यूज इनटू द डिक्शनरी यूजिंग द अपडेट मेथड. अपडेट मेथड यूज करके भी आप इसमें वैल्यूज ऐड कर, या तो डिक्शनरी और उसकी की ऐड करके भी
आप उसको वैल्यूज दे सकते हैं एज dict की इक्वल टू इट्स वैल्यू. You can do this. You see example here. Dict function is used and their key is 0 and it has given value Peter. Dict their value 2 and their key is 2 and it has given value Joseph. Similarly, function is used and in dict third key and it has given one value Ricky. You can see all these by printing dict. Once you print this dict, what will be displayed? Here you can see here first line printed, second line printed, third line printed and fourth line. On fourth line we will give 1, 2, 3, 4. This is the output displayed because of this function. Key, their value, key and their value, key and their value. What we have done here? क्या किया इसमें आपने क्या किया? एक empty डिक्शनरी बना दी थी, उसका नाम था dict. empty डिक्शनरी बना दी और इसमें वैल्यूज ऐड कर दो. ये 3 वैल्यूज उसमें ऐड हो गए. तो क्या आप कर पाएंगे ये? यस सर. तो ठीक है, आपको empty डिक्शनरी बना के उसमें वैल्यू ऐड करनी आती है. ओके. एडिंग सेट ऑफ वैल्यूज. अगर आपको एक ही की में मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना है, सेट्स ऑफ वैल्यूज ऐड करना है, तो भी आप कर सकते हैं. सिर्फ आपको क्या करना है, उसकी की देना है और की के बाद वो वैल्यूज देना है. मल्टीपल वैल्यूज आल्सो यू कैन ऐड. क्या ये हो सकता है? आपने किया था ये लास्ट टाइम? यस सर. यस सर. और उसके बाद में है ये वैल्यूज कर दिया, उसके बाद इसी को प्रिंट कर दिया तो उसका भी आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा. जैसे कि आप देखिए 3 वैल्यू ऐड कर दी है इस की पे. की क्या है? एम्प्लॉय एज, मतलब EMP_ एज लिखे वाला है यहाँ पे और उनके एज उसमें आ गए हैं. तो ये भी आपने करके देखा था लास्ट टाइम. उसके बाद आप अपडेट भी यूज कर सकते हैं. अपडेट एग्जिस्टिंग की वैल्यूज. अगर आपको एग्जिस्टिंग की वैल्यूज पे अपडेट करना है, वैल्यूज की पे वैल्यूज अगर अपडेट करना है, यू कैन आल्सो यूज. जैसे कि डिक्शनरी 3 इक्वल टू जावा पॉइंट, ये भी आपने यूज करके देखा था. ये क्या है? 3 क्या है? dict 3. इस ब्रैकेट में 3 क्या है? इस ब्रैकेट में 3 क्या है? दिखता है क्या? ये क्या है? की है. और उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू क्या है? 3 की वैल्यू क्या है? डिक्शनरी में ऑलवेज क्या होता है? की और उसकी वैल्यू होती है. तो इस डिक्शनरी में की कितनी है? 3 है. ओके. और उसकी वैल्यू क्या है? ये वैल्यू देखो, जावा. हाँ जावा सर ब्लर दिख रहा है मुझे. ब्लर दिख रहा है. जावा टी पॉइंट. जावा टी पॉइंट ये वैल्यू है 3 की. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू दी थी डिक्शनरी को? 3 में 3 की वैल्यू क्या थी? रिकी थी.
तो अब ये निकाल के आपको अपडेट करना है। अब समझो 3 की वैल्यू चेंज हो गई, तो आप ये भी कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या यूज करना है, dict3 की और इक्वल टू वैल्यू देना है। तो देखते हैं वो चेंज हो गई क्या। तो देखो पहले लिस्ट में 3 की वैल्यू क्या थी, रिकी थी। अब उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होके क्या वैल्यू आ गई, पहले की वैल्यू क्या थी, रिकी थी। ये देखो यहाँ पे 3 क्या है, की है, और ये उसकी वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई इसमें, जावा डिफॉल्ट। तो ये अपडेट हो गया। तो अपडेट हो सकता है, अपडेट करने के बाद पहली जो वैल्यू है वो चली जाएंगी, उसके जगह पे दूसरी वैल्यू आएगी, अगर आप वो करेंगे तो। ये समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। यस, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। है क्या? नहीं सर, नो नो सर। डाउट। तो इसके बाद में आपने देखा था एडिंग डिक्शनरी वैल्यूज, जैसे कि एक वेरिएबल लिया है एम्प्लॉय, उसमें डिक्शनरी की और उनके वैल्यूज ऐड किए हैं, और उसके बाद उसका डेटा टाइप प्रिंट किया है, और उसके बाद प्रिंटिंग एम्प्लॉय डेटा प्रिंट किया है। तो प्रिंट, ये मैसेज डिस्प्ले करने के बाद एम्प्लॉय को प्रिंट किया, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, और प्रिंट एंटर द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय का डिटेल आपको एंटर करना है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम इक्वल टू इनपुट नेम। तो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर द डिटेल ऑफ न्यू एम्प्लॉय। आप न्यू एम्प्लॉय का डिटेल और अपडेट कर रहे हैं। कौन से वेरिएबल, कौन से की पे अपडेट कर रहे हैं, नेम के ऊपर, और वो इनपुट दे रहे हैं आप। ये इनपुट लेने के लिए यूज होता है, इनपुट फंक्शन है। ये कीबोर्ड से इनपुट लेता है, जो भी नाम आप लिखेंगे तो वो वहाँ पे चला जाएगा। कहाँ पे, इस की पे, एम्प्लॉय टेबल के नेम की पे। ये जॉन है यहाँ पे, लेकिन ये रिप्लेस हो जाएगा अगर आपने ये यूज किया तो। उसका एज भी रिप्लेस हो जाएगा, उसकी सैलरी भी रिप्लेस करेंगे आप, और एम्प्लॉय के कंपनी भी आप रिप्लेस करेंगे। उसके बाद प्रिंट द न्यू डेटा, और प्रिंट करेंगे तो न्यू टाइप ऑफ डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। क्या ये होगा? क्या आप ये कर पाएंगे? राजश्री, यस सर। रिद्धि, सिद्धि और यस सर। पूजा, यस सर। और निखिल राज। निखिल राज, तो देखिए अब इसमें क्या होने वाला है। निखिल राज तो चला गया, इसको तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे आपने ये फंक्शन लिया है, तो यहाँ पे आएगा ऐसा एक बॉक्स, यहाँ पे आएगा ये मैसेज, आपने जो मैसेज इस पे डिस्प्ले किया है नेम, तो ये नेम ऐसा आएगा, नेम, उसके बाद कोलन,
इस बॉक्स में आप जो भी नाम देंगे वो इस की को चला जाएगा, नेम की को चला जाएगा। सेकंड, एज, तो उसका भी बॉक्स आ जाएगा। जहाँ पे भी आप इनपुट लिखते हैं तो उसका बॉक्स चला आता। और ये देखो यहाँ पे अगर इंटीजर लिया है, अगर यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा तो स्ट्रिंग लेगा। INT इनपुट, सैलरी जो है नंबर में चाहिए इसीलिए नंबर लेगा। तो ये आप कब करेंगे, अभी करना है या आप कर लेंगे? अभी कर लेंगे आप? अभी करेंगे सर। मैं करूं या आप करेंगे? आप मुझे करके करना दिखा है। सर एक बार। ठीक है। फिर हम कर we will use ये क्या हो गया? We will use browser के ब्राउजर यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर में I have copied program। तो देखते हैं अपन न्यू कोड लेते हैं। न्यू अगर कोड आपको लेना है, पहले का कोड यहाँ पे था, इसी में अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको न्यू कोड करना है तो आप न्यू कोड भी ले सकते हो, जैसे कि ये एरो आ जाता है। तो न्यू कोड लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो मैंने एक प्रोग्राम ऐड कर दिया है, तो इसको छोड़ देते हैं अपन। और एक सॉरी, मैंने तो ये कर दिया। तो देखिए ये रन होने को थोड़ा वक्त लग रहा है, न्यू कोड करेंगे जब तक। हाँ, तो अपन पहले लेते हैं एम्प्टी डिक्शनरी। तो एम्प्टी डिक्शनरी का नाम क्या देने का, स्टूडेंट देते हैं। स्टूडेंट एम्प्टी डिक्शनरी लेने के लिए क्या करना है, इक्वल टू ओपनिंग एंड करली ब्रैकेट। ठीक है, अगर इसको प्रिंट करके देखना है क्या प्रिंट डिक्शनरी होगी ये, तो आप देख सकते हैं टाइप करके, टाइप स्टूडेंट, तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, टाइप डिक्शनरी। तो देखते हैं क्लास डिक्शनरी बन गया। गुड। उसके बाद इसमें आपको क्या वैल्यूज ऐड करना है। तो वैल्यूज ऐड करने के लिए आपको क्या लिखना है, टेबल का वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है अपना, बोलते जाओ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छा, तो पहली वैल्यूज आप ऐड करेंगे तो की क्या रखना है, पहली नेम लिखते हैं। ठीक है, तो नेम को वैल्यूज देंगे, इसका नाम दे दूं, बोलो, किसी का भी नहीं देने का, तो बोलो जल्दी क्या लिखूं इसमें। सिद्धि। ठीक है, तो प्रीति का नाम लिख दिया है आपने डिक्शनरी में। तो इसको आप देख लेंगे पहले क्या ये प्रिंट हो जाएगा, तो फिर
प्रिंट क्या लिखूं यहाँ पे? स्टूडेंट ले लिया। ओके, अब क्या प्रिंट होने वाला है? कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्या प्रॉब्लम आया? स्ट्रिंग में नहीं आया इसलिए। डिफाइन नेम जो है नेम कोलन में रहेगा। तो पहले आपको डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी में अगर वैल्यूज ऐड करना है तो क्या करना पड़ता है? आपने ऐड किया था ना इसके पहले, ये यहाँ पे किया था। तो इसमें एरर आ गया है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा TICT। क्या अब हो जाएगा ये? होगा क्या? अब देखते हैं होता है क्या। फिर भी नहीं हुआ क्योंकि तो वो नेम आई गेस डबल कोट में चाहिए। डिफाइन नहीं हुआ, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या बोले? तो वो नेम का आई गेस कोट में रहेगा ना, स्ट्रिंग है क्योंकि वो ये नेम ऐसा कोट में क्या? नहीं, वो तो एरर वो नहीं बता रहा। वो क्या बोल रहा है? डिक्ट इज नॉट डिफाइन। डिक्शनरी को आपने डिफाइन नहीं किया है। पहले बता रहा था कि स्टूडेंट को आपने डिफाइन नहीं किया है, तो आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अरे यही प्रोग्राम था ना अपना। हाँ ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पे अब होता है क्या। हाँ, ये सिंटैक्स इनवैलिड है। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन हटा के देखा था। पहले इतना कोड रन करना है तो कर सकते हैं आप। इसको डिफाइन करना है। तो वो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, किस डिफाइन हटाना पड़ेगा। डिफाइन हटाना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना है आपको? तो मैं बोल रही थी डिफाइन हटाना पड़ेगा शायद। नहीं, अपन ने कल तो किया था ना डिफाइन। कल डिफाइन नहीं यूज किया था सर। डिफाइन नहीं किया सर अब। नहीं, डिफाइन यूज नहीं केलंय का? हाँ, ऐसा किया था। तो इसको आप करेंगे सपोज यहाँ पे लिखा स्टूडेंट इक्वल टू
फिर भी नहीं हो रहा है। डिक्ट इज नॉट डिफाइंड। तो ठीक है, पीपीटी में देखते हैं। अपने पीपीटी में होगा ये। हाँ, यहाँ पे क्या किया है, पहले एम्प्टी डिक्शनरी ली है, उसके बाद टाइप, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे तो लिया है। तो आप बोल रहे थे वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। तो आपने क्या किया था अभी, एम्प्टी डिक्शनरी ली थी, उसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया। ये तो हो रहा है, ठीक है। ये कोटेशन चाहिए था स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो अब नाम आ गया, और इसमें क्या ऐड करना है, स्टूडेंट, यहाँ पे ऐड करेंगे रोल नंबर, कितना रोल नंबर है आपका, रोल नंबर बताओ। प्रीति है क्या लेक्चर को? नहीं है सर, प्रीति आज नहीं आई है, वो वैक्सीन लेने गई है। अच्छा, उसका कितना रोल नंबर कितना है? रोल नंबर पता है क्या उसका? 4 है। 4 है क्या? तो 4 यहाँ पे लिया, 3 है सर। और मेरा 3 है उसका। तो अभी आएगा, 3 है सर उसका, 3। ठीक है, रोल नंबर ले लिया, और इसके बाद हाँ, यहाँ पे आपने अगर समझो ऐसा किया, तो देखते हैं क्या आता है। रोल नंबर हो गया, उसके बाद में आपको लेना है स्टूडेंट, एड्रेस लेते हैं, कहाँ रहती है वो? तो ये प्रिंट हो रहा है, रोल नंबर, एड्रेस, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। ना प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको अपडेट करना है, ये जो नाम है ये चेंज करने। तो कैसे चेंज करेंगे इसको? नाम को अगर अपडेट करना है तो समझो यहाँ पे लिखा आपने क्या, इनपुट, उसके बाद में ब्रैकेट, तो क्या होगा अब प्रोग्राम में, पहले लिस्ट है उसमें नेम प्रीति है, सेकेंड टाइम आपको लिखना है, क्या नाम लिखूं? पूजा। क्या खुद के नाम बता नहीं सकते आप, दूसरे के नाम बताते हैं ना।
ठीक है, पूजा लिखा है यहाँ पे, फिर एंटर कर दिया। तो फिर से प्रिंट करना पड़ेगा ना हम लोगों को पूरा वैल्यूज। हाँ। फिर से आपको प्रिंट करना है, तो ये प्रिंट लेते हैं यहाँ पे। हाँ, पूजा एंटर प्रिंट। नेम क्या हो गया? अपडेट पूजा अपडेट हो गया। यस। और सेम टाइप से आप करेंगे इनपुट, नेम के जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या सेकंड की क्या है अपनी, रोल नंबर, रोल नंबर। ओके, तो ये अगर नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे INT ले सकते हैं आप, INT। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे फिर से और देखते हैं। पूजा का नाम लिया था, पूजा, उसका रोल नंबर कितना है? 02। तो देखो रोल नंबर चेंज हो गया, पूजा 02 ना। और एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं। तो एड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? की के है एड्रेस की, एड्रेस। अच्छा, तो ये डेटा टाइप क्या रहेगा इसका? स्ट्रिंग है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला नाम है पूजा, उसके बाद है रोल नंबर और उसके बाद है एड्रेस। क्या लिखूं? वालुज। वालुज। तो एड्रेस भी आपका आ गया। और इस जगह पे आप सेम अगर प्रोग्राम आपको करना है तो आप फिर से इसको अगर कॉपी किया, सपोज यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये ऐसा करके कोई फायदा नहीं होगा अपना, क्योंकि क्या हो रहा है, फिर से दोबारा वैल्यू पूछे जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। पहले पूजा और 02, उसके बाद वालुज, और उसके बाद सेकेंड नाम किसका है? रिद्धि। रोल नंबर बोलो जल्दी। रिद्धि 5। 5। कहाँ रहते हो? गारखेड़ा। हाँ, दूसरे स्टूडेंट की भी एंट्री हो गई। तो अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट की एंट्री करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ पे वालुज, ये गारखेड़ा, ये क्यों प्रिंट होगा? ये पहले क्यों आया ये? हाँ, तो ठीक है, अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट की एंट्री लेना है तो आप इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या तो इसको लूप में डाल सकते हैं। तो ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको? क्या आप समझ पा रही है? यस सर। अच्छा, तो अब देखो
समझो आपको इस टेबल में स्टूडेंट के इसमें स्टूडेंट डॉट अपडेट करना है। तो आप इसमें भी और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बाद में देखते हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस। यस सर। यस सर। हाँ, तो सैलरी का ये प्रोग्राम होगा। तो अपन जाते हैं प्रेजेंटेशन पे। यू अंडरस्टूड दिस। डिक्शनरी में क्या होता है? डिक्शनरी में दो चीजें होती है, पहली की और उसकी वैल्यू। डिलीट एलिमेंट यूजिंग डिलीट कीवर्ड। तो आप डिक्शनरी से एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हो। तो देखते हैं डिलीट कैसे करने का है। तो आपको सिर्फ क्या यूज करना है? डिलीट टेबल का नाम और की। देखो अपने यहाँ पे एक टेबल है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के एंट्रीज है। तो फिर इस टेबल में से तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट आता है क्या? प्रिंट स्टूडेंट। हाँ, हो गया। लास्ट टाइम की जो एंट्री है वो टेबल में है। ठीक है, क्योंकि आपने अपडेट किया था, टेबल को अपडेट किया था, ऐड नहीं किया था, इसीलिए। तो अब इसमें से आपको समझो नाम डिलीट करना है। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे। क्या लिखना है? सिंपल TEL। उसके बाद टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? सॉरी, टेबल नहीं बोलते अपन इसको, क्या? वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। इसमें से आपको क्या रिमूव करना है? नेम। तो देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है क्या। और फिर से प्रिंट करना है आपको इसके बाद में स्टूडेंट। देखो पहले टेबल में नेम था, दूसरे इसमें से नेम गायब हो गया, सिर्फ रोल नंबर और एड्रेस ही बच गए। फिर से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं डिलीट को। समझो यहाँ पे आपने फिर से डिलीट कर दी। इसको डिलीट कर रहे हैं आप। कौन से की देना है आपको? क्या डिलीट करना है? रोल नंबर। तो इसको एग्जीक्यूट करो और इसको भी प्रिंट करो दोबारा। क्या हो गया आप? क्या हुआ? अभी तो हो गया था। आई गेस वो स्टूडेंट का नेम पहले डिलीट हो गया था, तो वो फिर से डिलीट नहीं कर रहा मे बी। अच्छा, तो सेकेंड टाइम वो टेबल में है ही नहीं, नेम है ही नहीं, इसीलिए, है ना? मे बी। ठीक है, हाँ सर, मे बी। टेबल में नेम है ही नहीं, सिर्फ रोल नंबर से ही स्टार्टिंग है। तो देखते हैं इसको। हाँ,
रोल नंबर और एड्रेस दोनों ही थे, तो सिर्फ अब एड्रेस ही बच गए। अब ये एड्रेस भी डिलीट हो जाएगा अगर आप यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस। तो टेबल अब एम्प्टी बन गए। जब आप यहाँ पे देखेंगे क्या है टेबल में, तो टेबल एम्प्टी ही देखेगा आपको, एम्प्टी टेबल। एक्सक्यूज मी सर, तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं 1 by 1। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डिलीट में। सर अगर हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज लिए और मतलब अलग अलग स्टूडेंट के लिए वैल्यूज, और इसमें से अगर कोई एक डिलीट करना होगा, आपने टेबल को अपडेट किया था, पहली वैल्यू तो निकल गई और दूसरी वैल्यू उसके जगह पे आई थी, तो इसीलिए बट इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग अगर हम लोगों ने ऐड किए ऐड करना है तो की वैल्यू दूसरी देनी पड़ेगी। की जो दी थी आपने उसकी वैल्यू अलग देनी पड़ेगी। जैसे कि समझो यहाँ पे आपने की एक ही यूज कर रहे हैं आप, रोल नंबर, नेम, ठीक है, तो इस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, की चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो फिर हम लोगों को नेम 1 नेम 2 ऐसे डालना पड़ेगा। आप डाल सकते हैं नेम 1 नेम 2 नेम 3। तो आप ये डिक्शनरी बना रहे हैं, डिक्शनरी में एक की उसकी वैल्यूज होते हैं, ठीक है, ग्रुप में भी आ सकते हैं नेम, लेकिन उसको क्या आपको इसमें ब्रैकेट में देना की अलग होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि आपने अगर अलग रही तो फिर आइडेंटिफाई होता है। ये एज यहाँ पे दिया था, देखो यहाँ पे एज दिए थे मल्टीपल, तो ये ऐसा आया था, ये एज की है, उसके वैल्यूज मल्टीपल आए थे, तो मल्टीपल ले सकते हैं आप, लेकिन ये ऐसा आएगा अगर आपको डिक्शनरी बनाना है तो, क्योंकि ये लिस्ट नहीं है या तो टेबल भी नहीं है। टेबल में आपको अगर ये सेव करना है तो आपको ये राइट करनी पड़ेंगे टेबल में, तब क्या होगा 1 by 1 एक के नीचे एक स्टूडेंट के पूरे डिटेल रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे। टेबल में रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन ये टेबल नहीं है, डिक्शनरी है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, अपडेट होता है। या तो मल्टीपल आपको देने हैं तो यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं, ऐसे मल्टीपल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेम टाइप डेटा डिलीट कर दिया था। दूसरा भी एक फंक्शन है जो कि आप यूज करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि समझो एक डिक्शनरी है, उसमें वैल्यूज है और यूज किया है पॉप यूज करके आप उसकी कीज दे दो, एटम डिलीट हो जाएगा। देखते हैं ये पॉप यूज करके, तो समझो आपने फिर से एक टेबल लिया है, स्टूडेंट, उसको प्रिंट करते हैं। तो क्या प्रिंट होगा, अब क्लास प्रिंट होगा, इसका डिक्शनरी क्लास है। अब इसमें लेते हैं नेम,
तो नेम इसका नाम लिया था पहले डिक्शनरी में, ठीक है, प्रीति का लिया था। प्रीति। तो ये नाम आ गया डिक्शनरी में। आपने इसको प्रिंट नहीं किया इसलिए ये नहीं दिख रहा है, प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट क्या लिखो प्रिंट में, प्रिंट क्या करना पड़ेगा, नेम, प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। तो Yes. प्रिंट स्टूडेंट करने के बाद नेम नाम तो आ गया, ठीक है। फिर से दूसरी फील्ड लेते हैं अपन। इसमें ऐसा दूसरा वेरिएबल आप ले सकते हैं, जैसे कि आपने अभी पूछा था क्वेश्चन आप मुझे, क्या स्टूडेंट, Yes, sir. जैसे कि आपने बोला था। आपका रोल नंबर कितना है? 6. नेम, इसको इनपुट दूसरा भी नेम लिया है आपने, तो दूसरा नेम यहाँ पे क्या है? आपका नाम रिद्धि ही था ना? हाँ, मेरा देखो। नाम सिद्धि है, हाँ रिद्धि। हाँ, तो पहली नेम फील्ड में दूसरा नेम ऐसे आप ले सकते हैं, लेकिन अगर अपडेट ये अपडेट हो रहा है, सेम अगर की ली तो उसकी वैल्यूज सेम रहेगी। अब इसमें से अगर आपको हाँ, तो न्यू कोड लेते हैं अपन। इसमें से अगर आपको डिलीट करना है ये रिद्धि का नाम, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको पॉप यूज कर सकते हो। तो पॉप यूज करने के लिए आपको क्या वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, इक्वल टू पॉप। तो वेरिएबल की क्या जरूरत है यहाँ पे? कोई जरूरत तो नहीं है। तो देखते हैं पॉप यूज करके। स्टूडेंट पॉप, उसकी लिखेंगे की क्या है? 06 है। तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। नेम 6 is not defined. की एरर, आई गेस डिपेंड करना पड़ेगा। वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ वेरिएबल, नहीं, विदाउट वेरिएबल तो ये होना चाहिए था। स्टूडेंट पॉप क्या यहाँ पे टेबल आ रहा है? एक बार यहाँ पे देखते हैं। अपन ने न्यू कोड किया है, तो स्टूडेंट प्रिंट प्रिंट स्टूडेंट प्रिंट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद पॉप
स्टूडेंट में से निकालना है एलिमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, डिलीट की यूजिंग पॉप मेथड। तो ये ऑब्जेक्ट है अपना, ऑब्जेक्ट डॉट पॉप, उसकी वैल्यूज दी है, तो ये नहीं जा रहा है। Error, track back most recent call last Python module print student of element key name 6. प्रिंट, इसके बाद प्रिंट करते हैं स्टूडेंट। क्या आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो मे बी अगर वो हम लोगों ने ये हटा दिए तो नेम 06 के पैरेंथेसिस ये कोटेशन नेम तो बराबर लिखा है। अरे सॉरी, ये 06 लिखा है अपने यहाँ पे, ये 06 नहीं लिखा था, ठीक है, इसलिए हो रहा है। हाँ, तो डिलीट हो गए। हाँ, देखो यस 6 को 06 लिखा था इसलिए। तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के बाद नहीं सब आप एक्चुअली इसको- डिलीट हो गया, इससे फिर से नहीं हो रहा है। ऐसा है क्या? ठीक है, यस सर, वहाँ तो पे देखते प्रिंट हैं हुई ना पहले नेम को। लिख क्या है। राइट, हाँ, अब इसको देखते हैं होता है क्या ये। तो क्या करते हैं, इसको न्यू कोड करते हैं, तो ये सेव रहेगा अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे लेते हैं, इसको करते हैं रिमूव। हो जाएगा। अब यस देखते हैं होता है क्या। यस, हो गया, लिस्ट एम्प्टी हो गई। अब पहले इसमें नाम था, दूसरे इसमें एम्प्टी हो गई। फिर से देखते हैं अपन, यहाँ पे करते हैं इसको रिमूव। यहाँ पे लिखते अपडेट। ओके, ऐड कर सकते हैं सर ऐसे। तो नेम अपडेट करना है। तो वहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है अपडेट करने के लिए, आई गेस पहले ऐड करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको की तो भी ऐड करनी Element नहीं पड़ेगी है। पहले, है ना? हाँ, Yes. टेबल हाँ। एम्प्टी है, इसीलिए वो नहीं ऐड होगा। तो इसलिए तो यहाँ आपको क्या पे करना स्टूडेंट पड़ेगा? डॉट पहले तो आपको प्रिंट के पहले क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल टू नेम कोटेशन में निखिल। तो ये ऐड हो जाएगा,
देखते हैं पहले ये ऐड होता है क्या। हाँ, निखिल राज का नाम ऐड हो गया है। अब इसमें आपको करना है अपडेट। जैसे कि स्टूडेंट ऑफ नहीं, ये ऐसा नहीं होगा अपडेट का। देखते हैं अपन, ये डिलीट का हो गया अपना पॉप यूज करके। उसके बाद एक एग्जांपल, इटरेटिव एग्जांपल है। अगर आपको लूप यूज करके, ये अपडेट का छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, ये लूप यूज करके कितना टाइम हो गया, तो एक एग्जांपल लेते हैं लूप का, उसके बाद में स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। डिक्शनरी कैन बी इटरेटेड यूजिंग फॉर लूप एज गिवन। आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं और पूरी की पूरी डिक्शनरी में जो कुछ भी होगे एम्प्लॉय में, वो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको प्रिंट करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। तो क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. तो लेना है या स्टॉप करना है यहाँ पे? लेते हैं सर। ठीक है। फॉर लूप, समझो कि आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, इसको एक टेबल बनाना पड़ेगा। फिर से आपको न्यू कोड लेना है, यहाँ पे स्टूडेंट, उसमें वैल्यू जो है वो ऐड करने हैं। एम्प्टी डिक्शनरी ले ली सपोज, इसको किया प्रिंट टाइप, तो समझ में आएगा आपके डिक्शनरी है या और दूसरा कोई बन गया। ठीक है, डिक्शनरी को आपने प्रिंट कर दिया। अब इसमें वैल्यू दो तरह से आप ले सकते हैं, इनपुट भी कर सकते हैं। तो इनपुट करने के लिए आपको क्या लिखना है, वेरिएबल का नाम वो है स्टूडेंट, उसमें नेम और इक्वल टू इनपुट इनपुट क्या, नेम क्या है, तो समझो आपने ये कॉपी करता मैं यहाँ से, या तो दूसरी मेथड कॉपी करता ये,
ये देखो यहाँ पे अभी टेबल बनने वाला है, तो नाम लेते हैं। प्रीति, उसका रोल नंबर क्या बताया था, 4 या 3 का कंफ्यूजन 0 था। ठीक है, कोई बात नहीं। और एड्रेस, ठीक है, ये लिस्ट बन गई। अब तो फॉर लूप आपको यूज करना था। अब अपने पास है टेबल, ठीक है। तो फॉर लूप अगर आपने यूज किया एक्स इन एम्प्लॉय प्रिंट, तो अभी एक्स तो यहाँ पे लिया है नहीं, फॉर एक्स, ओके, फॉर एक्स इन स्टूडेंट, स्टूडेंट। उसके बाद में प्रिंट करना है आपको, प्रिंट स्टूडेंट। तो ये सभी जो है वो 3 बार प्रिंट हो गए। क्यों 3 बार प्रिंट हुए हो गए ये? क्योंकि ये स्टूडेंट वेरिएबल जो है ये इसके पहले भी बहुत बार लिया है आपने, इसलिए स्टूडेंट एम्प्टी वेरिएबल उसमें आपने स्टोर कर दिए मल्टीपल टाइम, इसलिए ये प्रिंट हो गए। अगर इसको रिमूव करना है तो क्लियर, लेकिन पूरा टेबल ही एम्प्टी हो जाएगा। तो ये फॉर लूप से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं न्यू कोड आप अपडेट का करते हैं। अपन अपडेट का कोड करना है तो क्या अपडेट करना है आपको, स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट डॉट अपडेट। अपडेट में आपको नेम क्या है, प्रीति है, तो ठीक है, यहाँ इसको आपको कोटेशन में लेना है। नेम को करेंगे अपडेट करके दूसरा नाम डालना है आपको। तो क्या नाम डालना है, समझो डालेंगे राजश्री। और फिर से अगर आपको टेबल प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रिंट करके, प्रिंट स्टूडेंट। हाँ, तो अब हो जाएगा ये। तो नेम जो है वो अपडेट हो गए। अब ये इसमें ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये अपडेट क्या है, मेथड है, और इसके ये वैल्यूज है, ठीक है।
अपडेट समझ में आया? यस सर। तो आप अपडेट समझो, आपके पास ही नहीं है फिर भी आपको टेबल में कुछ दूसरा एलिमेंट ऐड करना है तो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि देखो ऐड करते हैं अपन, अपने पास क्या नहीं है, क्लास तो यहाँ पे लेते हैं मेसी और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो क्लास ये एक फील्ड अपडेट हो गई इस स्टूडेंट में, ठीक है? यस सर। यस सर। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको एक प्रोग्राम करना है आज के लेक्चर में, मतलब होमवर्क है और सबमिट करना है। तो क्या प्रोग्राम करेंगे आज? ये डिक्शनरी का करते हैं ना, अपडेट, डिक्शनरी मॉडिफाई, डिलीट, पॉप सब यूज करके देखते हैं। डिलीट अपडेट और हाँ, तो ऐसे ही करना है फिर, मतलब न्यू कोड लेके 1 by 1। पहले तो क्या करेंगे आप, ये सेम टू सेम, ठीक है, मतलब इनपुट नाम, रोल नंबर और एड्रेस लेंगे, वो डिस्प्ले करेंगे। लेने के बाद कीबोर्ड से लेना है, कीबोर्ड से लेने के बाद उसको डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले होने के बाद उसमें से जो टेबल है, टेबल को पॉप यूज करना है। पॉप यूज करने के बाद फिर से अपडेट यूज करना है, ठीक है? ये करेंगे। यस सर। इनपुट, पॉप और अपडेट, ये 3 चीजें करके एक प्रोग्राम बनाना है आपको, चलेगा? यस यस। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।